students. Hope you all are fine and healthy. We have started our chapter number 4, heat. This is part 3. And in part 1 and 2 we have discussed about the various types of thermometers. There are two types of thermometer, clinical and laboratory thermometers. About all this we have discussed in a 2 parts. Now in third part we will discuss about the transfer of heat, that how is heat moved from one to another object, है ना, कैसे पूरी हीट जो होती है पूरी सराउंडिंग्स में स्प्रेड होती है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होती है, वी ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट. So the heat flows from a hotter object to a colder object. हमेशा हीट कैसे ट्रांसफर होती है, जब हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है. ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. हॉटर से कोल्डर की तरफ हीट क्या करती है, मूव करती है. In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to the colder object. हमेशा heat कैसे move करती है, hotter to colder object. Heat is transferred in 3 different ways. जो heat होती है वो कितने ways से transferred होती है, 3 ways. There are 3 ways by which the heat is transferred from one object to another. या कोई एक पार्ट में से दूसरे पार्ट तक अगर heat move होती है तो उसके 3 methods होते हैं. Which are they? Conduction, convection and radiation. How many methods are there? 3 methods. Which are they? Conduction, convection and radiation. तो what is conduction? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सॉलिड पार्टिकल्स को आप हीट करते हो तो उसमें कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, दैट इज कंडक्शन. और जब आप लिक्विड को हीट करते हो सो देयर दे फॉलो द कन्वेक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. And the sun rays is coming to our earth or that our body feel the heat from sunlight. So which method there is a mode of transfer of heat, that is radiation. See here I have shown the example. This is a vessel. ये vessel है, इसको मैंने फ्लेम के ऊपर रखा है. This handle of the vessel. तो handle of vessel क्या है, solid particle है ना. तो solid में solid rod है आयरन की. तो उधर कौन सा method अप्लाई हो रहा है, that is conduction. अब ये जो अंदर लिक्विड है तो लिक्विड में कौन सा मेथड होता है, कन्वेक्शन. और जो फ्लेम है, फ्लेम से हीट मिल रही है वेसल को, सो इट इज द रेडिएशन. नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल अबाउट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कंडक्शन. द प्रोसेस बाय व्हिच heat is transferred from the hotter and to the colder end of an object is known as conduction. देखो यहाँ पे मैंने कैंडल रखी है. See here I put the candle. This is a rod. First hand will be hotter. पहले क्या होगा, पहला hand hot होता जाएगा, गर्म होता जाएगा. फिर धीरे धीरे ये hotter object जो hot side था वो वहां से heat कहाँ move होगी, colder side पे move होगी. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि heat always move from the hotter part to the colder part, है ना. तो hotter यहाँ पे ये hot हुआ तो hot से धीरे धीरे heat कहाँ move होगी, colder part में move करेगी. So this is the conduction. In solid generally the heat transferred by the process of conduction. कोई भी solid object हो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा method किया अप्लाई, that there was a transfer of heat by the conduction method. Okay students, it is about conductors and insulators. So what is conductors? The materials which allow the heat to pass through them easily. ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से हीट क्या होती है, इजीली पास होती है, वी कॉल इट अ कंडक्टर. एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सारे मेटल्स होते हैं जिस पर हीट इजीली क्या होती है, पास होती है. सो वी कॉल इट अ कंडक्टर्स. द मटेरियल्स थ्रू व्हिच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजीली. ऐसे मटेरियल जिसमें से हीट पास नहीं होती है, वी कॉल इट अ इंसुलेटर्स. एग्जाम्पल प्लास्टिक, बोर्ड, रबर. तो these are the insulators. Now we'll see the second method, convection. When water is heated, the water near the flames gets hot. Hot water rises. अब क्या होता है, जो लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड, वाटर हो, इफ यू आर मेकिंग द टी, एनी लिक्विड, है ना, जब आप उसको जो ऑब्जेक्ट, जो मॉलिक्यूल्स वाटर के पास होते हैं, जो वाटर बिल्कुल वेसल के नीचे होता है, वो क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. व्हाई? बिकॉज इट इज नियर टू द फ्लेम, है ना. सो हॉट वाटर, जैसे जैसे वाटर हॉट होता जाता है या कोई भी लिक्विड हॉट होता जाता है, गर्म, सो इट राइजेस, वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है. The cold water from the sides move toward the sources of heat. और जो ऊपर वाला वाटर होता है, कोल्ड वाटर, पहले जो फ्लेम के नियर था वो पहले गर्म हो गया तो वो कहाँ चला जाएगा, इट विल मूव टू द अपसाइड. एंड द कोल्ड वाटर विल मूव टू द डाउनवर्ड साइड, मींस नियर टू द फ्लेम. These water
gets hot and rises and water from the sides move down. ऐसे क्या होगा, हॉट वाटर ऊपर जाएगा और जो कोल्ड वाटर है वो कहाँ पे जाएगा, वो डाउनवर्ड साइड जाएगा. These processes continue till the whole water gets heated. This mode of heat is known as convection. ये मोड कौन सा होता है, जब पूरा वाटर हीट हो गया, पहले हॉट ऑब्जेक्ट ऊपर गया, डाउन वाटर जो कोल्ड वाटर था वो डाउनवर्ड्स गया, नीड द फ्लेम. दिस होल प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वाटर गेट बॉइल्ड, है ना. जब तक पूरा वाटर हीट नहीं हो जाता या कोई भी लिक्विड हीट नहीं हो जाता तब तक ये मेथड क्या होती है, कंटिन्यू होती है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. सी दिस इज द कन्वेक्शन. दिस वार्म वाटर राइजेस, जैसे जैसे वाटर वार्म होता जाता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और जो कूलर वाटर होता है वो कहाँ पे आ जाता है, डाउनवर्ड साइड में जाता है. सो दिस इज द कन्वेक्शन मेथड. देन वी विल सी रेडिएशन. फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन. अब क्या होता है, अभी आपने सॉलिड में पढ़ा, लिक्विड में पढ़ा, है ना. सॉलिड में कंडक्शन होता है, लिक्विड में कन्वेक्शन मेथड होता है. बट नाउ वी विल सी रेडिएशन. अब देखो, सन से हीट आपको मिल रही है, you are feeling the heat of the sun by which method, by the radiation method. The transfer of heat by radiation does not require any medium. क्या सन को हमारे अर्थ तक आने के लिए कोई मीडियम की जरूरत है, कोई पाइप, कुछ नीड है? No, they does not need any medium. So the directly the heat, sunlight of heat coming to the earth, the heat is coming to the earth, है ना. By the, this means they require no any medium. It can take place whether medium is present or not. अगर मीडियम है तो भी ठीक, नहीं है तो भी, बट ये जो प्रोसेस होती है कंटिन्यूसली होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीटेड बाय दिस प्रोसेस. अब आपके रूम में रूम हीटर चल रहा है एंड योर बॉडी इज गेटिंग हॉट, है ना. बाय व्हिच मेथड इट वाज गोइंग ऑन, इट वाज गोइंग बाय द रेडिएशन मेथड. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiations. कोई भी hot object पड़ा है, आपने कोई भी vessel रखा है, उसको आपने भले flame से बहुत दूर रखा, but even the vessel will becoming hot by which method, radiation method. Our body tube gives heat to the surroundings and receive the heat from it. हमारी बॉडी को भी हीट मिल रही है, हमारी बॉडी में से हीट भी ट्रांसफर हो रही है. This all method is done by the radiation method. Is it clear, students? There are three mode of transfer of heat: conduction, convection, and radiation. Conduction means solid, convection means in a liquid, and in a radiation it is that heat is transferred without any medium or any medium. Okay, just like example sun, we get the heat from the sun without any medium. So this is the radiation method. Now we will sea bridge. The people living in the coastal areas experiences an interesting phenomena. जो coastal regions में रहते हैं वो एक बहुत interesting phenomena है. Which phenomena they feel? So they during the day के टाइम पे जो land होती है, the land gets heated faster than the water. जो land होती है वो बहुत जल्दी heat होती है as compared to the water. The air over the land becomes hotter and rises. जो land के ऊपर की जितनी भी air होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा hot होती है. तो hot land air की वजह से जो land है वो भी कैसा हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. The cooler air from the sea rushes towards the land to take its place. और cooler air जो होती है, जो water के ऊपर की जो air है वो कैसी होगी, cool होती है, because water is cool, है ना. तो water जो cool air है वो किसकी तरफ move करती है, वो land की तरफ move करती है, क्योंकि वो land की hot air को क्या करना चाहती है, replace करना चाहती है. So the warm air from the land move towards the sea to complete the cycle. जो warm air होती है, ये land की warm air कहाँ पे जाती है, water की तरफ जाती है, और water की जो cool air होती है वो कहाँ पे जाती है, land पे जाती है. So this is the cycle that will move during the day. Warm air from land. Land के ऊपर की जो air होती है वो कैसी होती है, warm होती है. तो warm air कहाँ move करती है, water की तरफ move करती है, और water की जो cool air होती है वो कहाँ move करती है, it move towards the land. This is the cycle. This is known as the sea bridge. To receive the cooler sea bridge, the windows of the house in coastal areas are made to face the sea. ये सब क्या करते हैं, sea bridge की फील करने के लिए वो अपने घर की सारी विंडोज ओपन कर देते हैं. So they feel the colder at that areas. Okay. And same phenomena during the night. अब नाइट में क्या होता है, उसकी पूरी रिवर्स होती है. जो कोल्डर एयर वाटर की लैंड की तरफ मूव करते हैं, पूरी साइकिल क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है. The water cools down more
वाटर हो रहा था, अब वो कैसा होता है, उस टाइम इधर यहाँ पे क्या हो रहा था, लैंड वार्म लैंड हो रहा था, इधर वाटर क्या हो रहा है, जल्दी ठंडा हो जा रहा है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी. अब यहाँ पे लैंड की कूल एयर, देखो लैंड की ये जो कूल एयर है वो कहाँ पे मूव करती है, ओशन से कहाँ पे आ रही है, लैंड पे आ रही है. So this is the land bridge. We can see here this is the land bridge. So student, read the mode of transfer of heat: sea bridge, land bridge. Okay, thank you. Have a nice day ahead.